अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है बेटा? मैम बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ठीक ठाक। Where is rest of the class? बेटा मेरा तो कहना नहीं ना मानता। Can you hear me? Yes, Can ma'am. we start, beta? यस मैम। Yes, ma'am. Acha, okay. So, can anybody tell me what is this? Let me tell you, this is liver, hepatocytes. What is this? It's a stain. मैम हेमोसिड्रियस स्टेन। Hemosidrin तो हमने क्या कहा था? क्या कलर होता है? बेटा ये इसको देखना। प्रशियन ब्लू। Prussian Semi blue. Prussian Very good. blue. या म्यूट करें सब। Yes. Voice. हम इतने पीछे होते हैं। चलो ओके जी बेटा, दिस इज Prussian blue. ठीक है, सो हीमोसिड्रिन का व्हाट इज द कलर ऑफ हीमोसिड्रिन? प्रशियन ब्लू। Yellow brown. Blue. इट इज येलो ब्राउन. ठीक है, सो येलो ब्राउन उसका वैसे कलर है, लेकिन इट स्टेन्स ब्लू विद द Prussian blue stain. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज. Yesterday we did pigments. There are two types of pigments. One are Exogenous, exogenous and endogenous. Endogenous. In exogenous we have examples of carbon. Give me an example of carbon. Ma'am, Anthracosis. Excellent. Anthracosis. Anthracosis and coal workers pneumoconiosis. Very good. And any other example regarding skin? Tatooine. Tattooing. Poison? Lead poisoning. lead poisoning. Shabash. Coming to endogenous pigments, what are the three main endogenous pigments? Lipofuscin, melanin and hemosiderin. and Very good. So lipofuscin, where do you find, in which organs do you find this pigment? liver and kidney. Liver and heart. Shabash. Very good. Sorry, ब्रेन beta. में भी तो होगा मैम, ब्रेन में भी तो होगा। Brain में? It can occur anywhere, but the most common site. Heart. You do not see the brain biopsies that often. लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसमें problem wear and tear की आती है, that is the heart. You also have this in other tissues like kidney. You can also have this in muscle, a number of organs. ठीक है? But cardiac muscle and liver, even kidney, they are the important ones. ठीक है? अच्छा, so today we are going to do the next topic, which is deposition of lipids. ठीक है? Or accumulation, intracellular accumulation of lipids. So lipids accumulate in two forms. Number one, in the form of triglycerides or in the form of cholesterol. ठीक है ना? ये दोनों lipids की types हैं. So it can either accumulate in the form of triglycerides or in the form of cholesterol. So most of the liver fat metabolism, it takes place in the liver. ऐसा ही है ना बेटा? जो आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा. Yes, ma'am.
Yes. Intracellular lipid accumulation. In intracellular lipid accumulation, lipid is either in the form of triglycerides or in the form of cholesterol. ठीक है, triglyceride जो maximum liver metabolism होती है ना, that takes place in the liver. So liver is usually the site where you can have lipid accumulation in the form of triglycerides, and we call it fatty liver. ये देखो, ये normal liver है. What is this? Can anybody tell me? Fatty liver. ये liver है, ये क्या चीज है Central बेटा? vein. Ma'am, ये तो शाबाश, this is central vein, and what is ma'am this? lipofilm. Ma'am, central vein. Portal triad, very good. Portal triad has three things: the bile duct, the hepatic artery, the portal vein, and the hepatic artery. So this is the portal triad. This is the hepatic vein, and see, there are all the hepatocytes. You don't find any fatty change. What happens here? There is a lot of accumulation of fat in the lipid because of some abnormal metabolism of fatty acids, fat. So what do you see here? This is the central vein, this is the portal triad, and here you can see the fatty change in the liver, in the hepatocytes. Okay? So remember that lipid accumulation is of two types. One is in the form of triglycerides and the other is in the form of cholesterol. The example of triglycerides is fatty liver. ठीक है, ये fatty liver इसकी example है. You can have fat accumulation in the heart. We can have it in the muscle, in the liver. ये सब चीजें आ जाती हैं. The next thing, ये देखो, this is the liver parenchyma. The pink one is the liver parenchyma, and this is the fatty change which is occurring here. ठीक है, so this is fatty change. ये देखो, कितनी ज़्यादा fat है. Patient can be obese, can be diabetic, can be an alcohol abuser. So इस तरह की. So the other form of lipid that accumulates in the body is cholesterol. ठीक है? So cholesterol, when it accumulates, this is a normal artery, very clean. But this is an artery which is narrowed by a plaque. So what happens? When the cholesterol accumulates in the artery, this is called atherosclerosis. समझ रहे हो? Yes, ma'am. Okay, so either the fat accumulates in the form of triglycerides, जो कि example है fatty liver, or it can accumulate in the form of cholesterol, which is far more common, or उसकी example है if it accumulates, cholesterol accumulates in the vessel wall, it will narrow down the lumen, and this condition is called atherosclerosis. See, this is the normal lumen of the artery. But when the cholesterol accumulates in the lumen, it narrows down the lumen, resulting in a sort of partial obstruction, and this is called atherosclerosis. See? And if you have cholesterol accumulated in the villi of the gallbladder के villi होते हैं ना, so all this light shade is the cholesterol in the macrophages. So if the cholesterol accumulates in the villi of the gallbladder, this condition is called cholesterolosis. Cholesterolosis. मैम कहाँ पे है इस स्लाइड में? बेटा ये सारा, ये विलस है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, columnar lining के साथ. And these are the macrophages which have ingested cholesterol. और ये आपको lighter shade में नजर आ रही है. So cholesterol accumulation different जगहों पे जब होती है तो we assign them a different name. आप समझ रहे हो बेटा? अगर वो blood vessel में cholesterol accumulate होगी तो हम इसको atherosclerosis कहेंगे. अगर वो gallbladder villi में accumulate होगी तो हम उसको cholesterolosis कहेंगे. और अगर वो joints में accumulate हो जाएगी या अगर subcutaneous tissue में accumulate हो जाएगी या subcutaneous tissue of joints में हो जाएगी, it is called xanthoma. ये सब show करते हैं abnormal accumulation of cholesterol in the body. समझ आई आपको? So अगर हम lipid accumulation, xanthoma किसके? बेटा xanthoma होता है subcutaneous accumulation of cholesterol in sites like joints या आपकी eyelids वगैरह इधर होता है जैसे आप इसमें देख रहे हो. ये typical देखो yellow areas आपको नजर आ रही हैं. ये cholesterol bound areas.
कुछ में कंजेनिटल हाइपरलिपिडीमिया में होता है, वैसे भी कुछ लोगों में हो जाता है जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो दे अपीयर इन द आईज और इन सबक्यूटेनियस एरियाज नियर द जॉइंट्स. ठीक है. So these are the lipid accumulations. The lipid accumulates in two forms. One is triglyceride, the other one is cholesterol. ये सब lipids के components हैं. So triglycerides में it accumulates in the liver, in the muscle. ठीक है. और इसमें आपका, इसको हम कहते हैं fatty liver या steatosis. Are you getting me बेटा? समझ आ रही है? दूसरे नंबर पे cholesterol है. We name the accumulation of cholesterols, we name differently the accumulation of cholesterols in different structures. For example, if cholesterol will accumulate in the blood vessel, we'll call it Atherosclerosis. if it accumulates in the gallbladder, we call it Cholesterolosis. Cholesterol से याद रखिए. Cholesterolosis. If it accumulates in the subcutaneous tissue, we call it xanthoma. MCQ, MCQ, MCQ. ठीक है. Xanthoma is the subcutaneous accumulation of the cholesterol, especially at the sites where there are joints या loose tissues होते हैं, like this. So then there is another thing which is the accumulation of proteins. Proteins can accumulate in the body in one of the three ways. एक तो proteins can occur, you know, a little bit of protein. जी. मैम वो शोर हो रहा है पीछे से, ही आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है बेटा. अभी है उसमें? नो मैम आप ठीक है. क्लियर है आपको? ओके. ठीक है. सो अब हमने कहा है कि नाउ विल डिस्कस द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी. सो देखो तीन चीजें हो सकती हैं. एक हो सकती है कि प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेसिव अमाउंट्स. ये भी पॉसिबिलिटी है. इतनी ज्यादा बनना शुरू हो जाए दैट दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी. दिस इज वन कंडीशन. ठीक है. दूसरी कंडीशन है कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन नॉट बी सिक्रेटेड आउट बाय द सेल्स. वो सेल के ऊपर ना बोझ बन के बैठ जाती है. दिस इज द सेकंड टाइप. एंड देयर इज अ थर्ड टाइप व्हिच आर कॉल्ड रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स. ठीक है. Yes, ma'am. Resorption droplets क्या होते हैं? Like in kidneys. In kidneys, the glomeruli, they normally filtrate a little bit of protein, which is finally reabsorbed by the proximal tubules. Normally ये होता है. थोड़ा सा glomerulus filter करते हैं और वो tubules reabsorb कर लेती हैं. लेकिन अगर डायबिटीज में या किसी ऐसे, जी मैम दोबारा बता दें, आवाज नहीं आ रही थी. अब आ रही है बेटा आपको? अब आ रही. बेटा हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन्स एक्यूमुलेट करती हैं या जब वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही हो लेकिन बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो. सो आप उसमें नॉर्मल प्रोटीन्स हैं लेकिन दे आर प्रोड्यूस इन सच एक्सेसिव अमाउंट्स दैट दे आर एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी. एक तो इसको है. दूसरी चीज होती है कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड और वो इतनी एबनॉर्मल हैं दैट दे डू नॉट मूव, दे स्टे वेयर दे आर. सो दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर एबनॉर्मल प्रोटीन्स. और एक कंडीशन है जिसको हम कह रहे हैं रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स. व्हाट आर रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स? नॉर्मली ग्लोमेरुलाई दे फिल्टर वेरी माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स. ऐसे ही है ना. अब ग्लोमेरुलस से जब वो जाते हैं तो वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाती है. ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुई थोड़ी सी प्रोटीन्स और वो फिर वापस जाके रीएब्जॉर्ब हो गई प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई प्रोटीन एक्सक्रीट नहीं हो रही होती इन द यूरिन. ठीक है. व्हाट हैपेंस जब डिजीजेस आती हैं जैसे डायबिटीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा filtration हो रही है of proteins because of some sort of imbalance. So proximal tubules बहुत ज्यादा तो reabsorb करने की कोशिश करती हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन इतनी प्रोटीन आ रही होती है कि बहुत ज्यादा करने के बावजूद excrete होना शुरू हो जाते हैं. So this is the condition in which the cells, the tubular cells, they reabsorb excessive amounts of proteins and they appear in the cytoplasm of these cells, in the tubules.
These are called resorption droplets. So this is a tubule. This is a proximal tubular epithelium, and this dark pink area that you can see here are all the proteins that are actually resorbed by the proximal tubules, and they're staying here. इतनी ज्यादा रिजॉर्ब हो गई है कि वो बॉडी को देने के बावजूद बॉडी भी अब एक्सेस में चली गई. सो अब ये आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती. These are the resorption droplets. समझ आई है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So then we have another condition in which abnormal proteins are produced. So the abnormal proteins which are produced, they cannot move forward from the endoplasmic reticulum. You all know proteins are produced in the endoplasmic reticulum. ऐसे ही है ना? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. Endoplasmic reticulum normal proteins बनाता है, फिर उनको packaging होती है, and then they are secreted by the cell. लेकिन sometimes और ये सिर्फ normal packaging होती है is always of the normal proteins. अगर abnormal proteins endoplasmic reticulum बनाता है तो वो उसको आगे नहीं भेजता for packaging. As a result of which they accumulate in the cell just next to the nucleus or even outside the cell. ये देखो इधर ये cytoplasm में accumulate हो रही है, इधर ये cytoplasm में accumulate हो रही है, इधर ये cytoplasm में accumulate हो रही है. These are called hyaline globules. These are the abnormal proteins that cannot be secreted by the cell, and they stay there within the cell and they take up this color. हमेशा protein pink color लेगी. So ये देखिए. But here you call them hyaline globules. Hyaline globules. और ये किस condition में होता है? It occurs in a condition called alpha-1 antitrypsin deficiency. MCQ, MCQ, MCQ. प्रोटीन के आपको आएगा कि एक पेशेंट है, उसको alpha-1 antitrypsin deficiency है, उसके अंदर बताएं कौन सी accumulation हो रही है, किस चीज की? प्रोटीन की हो रही है, लिपिड की हो रही है, फलां की हो रही है. So the answer is proteins. Protein. And the hyaline globule, right? बेटा समझ आ रही है इसकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So पहली चीज हमने की, डेफिशिएंसी ज्यादा होगा ना? एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी. जिसने प्रोटीन को तोड़ना है, एंटीट्रिप्सिन जिसने प्रोटीन को जिसको कहते हैं ना ब्रेक डाउन करना है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है. सो प्रोटीन भी ब्रेक डाउन नहीं हो रही, तो ये एक्यूमुलेट होती रहेगी. ठीक है? ओके. हाँ जी. तो ये इसमें हो गया. एंड द थर्ड कंडीशन इज, सो जैसे अब ये थर्ड कंडीशन कौन सी है कि जिसमें नॉर्मल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेसिव अमाउंट्स. ठीक है? नॉर्मल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेसिव अमाउंट्स. एंड आई हैव टोल्ड यू कि wherever there is protein accumulation, you'll find it in the form of hyaline globules, या you find it in the form of eosinophilic pink eosinophilic material. समझ आइए? Yes, ये ma'am. हमारी तीन कंडीशंस है. नंबर 1, resorption droplets. Resorption droplets occur in kidneys. मैंने आपको दिखाया resorption droplets क्या होते हैं. ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा resorption प्रोटीन्स की वजह से accumulate होने लग जाते हैं. These are called resorption droplets. Then you have alpha-1 antitrypsin deficiency, which is actually the production of abnormal proteins which cannot be broken down. They stay there. This is called alpha-1 antitrypsin, and this is protein accumulation in this condition. Then you have another condition in which the proteins are normal, but they are excessively produced in the body, as a result of which निकालने के बावजूद, excrete करने के बावजूद, a lot of the proteins are accumulated in the body. This is called, these are the Russell bodies. This is the normal thing. The normal protein component is called the Russell bodies, which accumulates within the cytoplasm of a normal cell. Alcoholic This is highlight. called what? Sorry, beta. This normal production in excessive amounts is condition. This picture, this hyaline, this globular part, beta, in सब की appearance is alike. ये भी वही चीज है जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ. But since the mechanism is different, so we call them resorption droplets. ठीक है?
The mechanism behind is different. Similarly, here, again, you find them in the form of eosinophilic balls, but here we call them hyaline globules. Right? This is, Yes, ma'am. these are hyaline globules. The mechanism is different. It is seen in alpha-1 antitrypsin. And when such proteins accumulate normally, we call them Russell bodies. Russell bodies is actually accumulation of these proteins in the cytoplasm, and normal proteins. In alpha-1 antitrypsin, there are abnormal proteins. So in दोनों को differentiate करने के लिए we call them hyaline globules, and we call them here normally हम इनको कहते हैं they are Russell bodies. समझ आई बेटा? Yes, ma'am. ये proteins हैं. Then we have alcohol hyaline. Alcoholic hyaline liver में होता है. What is hyaline? Hyaline is a pink eosinophilic material which you can see here. It is not considered to be an accumulation, rather it is considered to be a change. In cases of alcoholic intake, excessive alcoholic intake, certain parts of the cell, they undergo degeneration and they take up more pink color. It is called a hyaline degeneration. I won't go much into the detail. या बाद में इसकी proper आप इसमें detail करेंगे. But remember that cell has some proteins which are present in their structural proteins. एक enzymatic proteins होती है, एक structural proteins होती हैं. समझ रहे हो आप? So अब I'm talking about the structural proteins. So in the neurons, the structural proteins are the neural proteins. अगर ये proteins degenerate होती हैं, तो हम इनको कहते हैं neurofibrillary tangles. They are seen in which condition? कौन बताएगा मुझे? Excellent. You know more than my expectations. Very good. Neurofibrillary tangles, MCQ, MCQ, MCQ. They are seen in Alzheimer's disease. ठीक है बेटा? ये MCQ में आता है. So, the cellular proteins are of two types. One are the enzymatic proteins, which are integral components of the enzymes. The second ones are structural proteins. तो जब structural proteins को problem होती है, तो उसको हम एक different नाम देते हैं. For example, अगर हमें structural protein of a neuron affect होता है, we call it neurofibrillary tangles. They are seen in Alzheimer's. ये हो सकता है आपको MCQ में आए, patient is suffering from Alzheimer's disease. What is the accumulation or what is the change which is expected to be seen in this patient? So आपको पता होना चाहिए कि Alzheimer's में neurofibrillary tangles आप दिखाएं. Then अगर एक और structural protein है जो cytokeratin जो intermediate filaments हैं, if they are destroyed या if they are broken down, they accumulate in the form of hyaline material. इस तरह का pink नजर आता है. ठीक है? Do you know anything about amyloidosis? Any idea? Ma'am, beta मैम अल्कोहलिक हाइलिन को दोबारा करा दें. हाँ बेटा मैंने आपसे कहा है, मैं आपको बताती हूँ. प्रोटीन्स दो तरह की हैं. You have structural proteins and वो प्रोटीन्स जो कि एंजाइम्स का इंटेग्रल पार्ट है. हम अभी एंजाइम्स को नहीं टच कर रहे. हम अभी बात कर रहे हैं कि जब भी एंजाइम्स की प्रोटीन को कुछ होगा ना, तो उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी. लेकिन जब स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कुछ होगा तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द चेंज. जैसे न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर वो प्रोटीन खराब हो जाएगी, इट इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर लाइफ, एंड दे आर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स. Neurofibrillary tangles are nothing but the structural proteins in neurons that are broken down. समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. अब हाइलिन की बात करते हैं. इसी तरह कुछ सेल्स के अंदर न्यूरल प्रोटीन्स नहीं होती, बल्कि उनके अंदर मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, साइटोकेराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. If the intermediate filaments are broken down, ये भी structural protein है, it is going to accumulate in the form of hyaline material.
बस ये ऐसे ही Yes, जिसको कहते हैं ना इरेगुलर शेप्ड, ये अंदर पड़ा हुआ होगा. दिस इज नथिंग बट इरेगुलर प्रेजेंस ऑफ सम eosinophilic मटेरियल विद इन द सेल व्हिच शोज कि इस सेल की किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुई है. ठीक बेटा. yes ma'am. Yes ma'am. और सबसे कॉमन कॉज कौन सा है? एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू. अल्कोहल. अल्कोहल बड़ी गड़बड़ करती है. अल्कोहल फैटी लिवर करती है. अल्कोहल हाइलिन चेंज करती है. So ये. So what is amyloidosis? We'll revise it again, beta. What is amyloidosis? Abnormal proteins. Sorry. Irregular. proteins. Abnormal. Shabash. Okay. Shabash. They are abnormal proteins. Very good. They are abnormal proteins. Abnormal proteins होती है ये accumulate करना शुरू कर जाती हैं. ये देखो सबसे common example MCQ MCQ MCQ. टंग अगर आपको देंगे ना, so amyloidosis is very 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 common in the tongue. ये देखो ये normal tongue का architecture है. ये जो आपको eosinophilic area नजर आ रहा है जिसमें आपको कोई irregularity नहीं नजर आ रही, it's very smooth and shiny. What is this? Amyloid. ठीक है. और amyloid हमें नजर कैसा आता है? It is an eosinophilic structureless material that is usually seen in the vessel wall and in the parenchyma. ठीक है. किसी भी चीज के स्ट्रक्चर्स में नजर आता है. ओके. अभी तक जब जो चीज हमने की है बेटा, लेट्स रिवाइज. हमने accumulations की हैं. हमने accumulation की है कि pigment can accumulate in the body. Pigments are of two types. You all know well. I'll post the assignments today inshallah. उसको आपने complete करना है and we'll discuss all those assignments tomorrow. ठीक है. समझ आई? Yes ma'am. So हमने एक lipids के बारे में हम pigment revise कर चुके हैं. Let's revise lipids. How many types of lipids do we have? Ma'am, two types. Fats, Fats and cholesterol. Shabash. Cholesterol. If the cholesterol accumulates in the gallbladder, what do we call it? Cholesterolosis. Shabash. It's an MCQ. If the lipid accumulates in the blood vessel, what do we call it? Atherosclerosis. Atherosclerosis. And another MCQ, if the lipids accumulate in the subcutaneous tissue, उसको क्या कहेंगे? Xanthoma. Very good. ये बेटा MCQs हैं. और फिर एक और चीज है which is Niemann-Pick disease. Niemann-Pick disease यही होती है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल accumulate कर जाती है congenitally. ठीक है. So it's a disease जिसमें उसका metabolism ठीक नहीं होता. मैंने दूसरा लेक्चर पे जाना. ठीक है. ठीक. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चले, हम प्रोटीन्स भी एक दफा रिवाइज करें. ठीक है. So proteins can accumulate in the body. So what are the different types in which it can accumulate in the body? Number one, Normal body. proteins not shabash, abnormal proteins. They are called Hyaline. shabash, hyaline globules. And the condition in which they are seen? Alpha-1 antitrypsin deficiency. Very well done. Very well done. Number two, if normal proteins are accumulated in excessive amounts, they appear in the cytoplasm as pink dash. Russell bodies. Russell bodies. Very good, very good, very good. And there is another condition which is called resorption droplets. In which tissue or organ we find resorption droplets? Kidney. Very good, very good. फिर उसके बाद अब आ जाता है प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अगर एक्यूमुलेट होती हैं तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? So we have Neurofibrillary tangles and alcoholic shabash. hyaline. We have neurofibrillary tangles in Alzheimer's and we have some structural proteins जिनमें के हमारा intermediate filaments हमारे होते हैं. Filaments. जी. और उसमें आते हैं हमारे हाइलिन चेंज होती है. उसके अलावा ठीक बेटा, वेरी गुड. उसके बाद एक होता है ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन. ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट करती है जिस वक्त नॉर्मली ग्लाइकोजन के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं which are converted by the action of enzymes into soluble components. So जब वो enzymes ही deficient हो जाते हैं जो बड़े molecules को soluble में कर रहे हैं, so glycogen starts accumulating in the
in the cell cytoplasm. And the condition is glycogen storage diseases. ठीक है, बस इतना ही आपको अभी के लिए आना चाहिए। समझ आ गई है इसकी बेटा? Yes, ma'am. इसमें आपको MCQ ज्यादा आते हैं, एंड पिगमेंट आपको उसके ऊपर पिगमेंट्स के ऊपर यू गेट SCQs एज वेल, लेकिन ज्यादातर MCQs आपको इस टॉपिक में से आती है। सो नाउ द टॉपिक, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, और कल बिल्कुल हम थोड़ा सा जो हमारा मिस हो जाएगा हम वो करेंगे। टुमारो इंशाल्लाह विल बी हैविंग आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें आई विल ट्राई टू डिस्कस द SGDs, नॉट द SGDs, द असाइनमेंट्स, और जो चीजें हमारी रह गई हैं वो करेंगे। और इसके अलावा हम MCQ नॉट MCQs, SCQs क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा? Clinical scenarios, ma'am. क्लिनिकल सिनेरियोज हमारे उसी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि क्लिनिकल सिनेरियोज ठीक में है। आपको साथ साथ बता भी रही हूँ। इफ आई कैन गेट अनदर एक्स्ट्रा लेक्चर, सो मैं आपको उसका पूरे का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड वो करा दूंगी, विच आई वांट कि मैं आपका एक और ले लूं इफ आई गेट टाइम, अदरवाइज हमारा कल लास्ट लेक्चर होगा। सो बेटा अब कैल्सिफिकेशन पे आ जाएं। कैल्सिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिफिकेशन? कुछ पता है? Calcium deposits. वेरी गुड, absorption कैल्शियम की वजह डिपॉजिट्स, वेरी गुड, कैल्शियम डिपॉजिट्स होती हैं। और मुझे आप बताओ इसका कलर क्या होता है? एनी आइडिया? मैं white Right. वेरी गुड, वाइट आपको नजर आता है ऐसा, जैसे आपने उस दिन देखा था। किसके अंदर कैल्सिफिकेशन हमने पढ़ी थी? याद करो, जिसमें हमने कहा था कि एक सर्जन होता है, उसको सर्जरी करते ही MCQ Momentous वाला, सॉरी चौकी white, yes which condition? momentous, मैम पैनक्रियास भी पड़ी। एक्यूट Momentous पैंक्रियाटाइटिस में। ठीक है, किसने आंसर किया है? किसने आंसर किया है? 23 fat necrosis में। फैट नेक्रोसिस। किसने आंसर किया है? बच्चों बताओ, मुझे नाम बताओ। ईशा, बिस्मा, जैन, ईशा मैम, ईशा, और किसने? शाबाश, वेरी वेल डन। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल सही पिक किया कि कैल्शियम जहां भी नजर आता है इट अपीयर्स एज चॉकी व्हाइट। पता नहीं आप लोगों ने चॉक्स देखे हुए भी हैं कि नहीं? हम तो जब बचपन में पढ़ते थे तो चॉक्स होते थे। सो इट इज चॉकी व्हाइट, चॉक की तरह का होता है जैसे ये। ठीक है, चॉकी व्हाइट। एंड हाउ डज इट अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप? कैसा नजर आता है? कैसा नजर आ रहा है? जी, इट इज डार्क ब्लू amorphous acellular material. सो अगर आपने कैल्सिफिकेशन को कोई आपको नोट में देगा या MCQ में हिंट देगा तो वो होगा ब्लू amorphous acellular सा मटीरियल है। सो नंबर 1 कैल्सिफिकेशन याद रखो। व्हाट इज कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन इज डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्सिफिकेशन आप लोगों के लेवल पे याद रखो कि विसराज में ये व्हाइट फॉर्म में नजर आती है और माइक्रोस्कोपी के अंदर ये ब्लू में नजर आती है, डार्क ब्लू नजर आती है। आगे बताओ, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट यू यूज विद इट? डार्क ब्लू, एमॉर्फस, एसेल्युलर। ठीक है जी। और अब आप इसमें मुझे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशंस। One is dystrophic calcification. Dystrophic calcification, याद करो, D is for dystrophic, D is for dead. Dystrophic calcification occurs in dead and dying tissues. Dead tissues में calcification होती है. And what is the other name for the dead cell? Necrotic cell. Shabash. So necrosis में you find dystrophic calcification in necrotic tissues. और नेक्रोसिस कितनी तरह का होता है? केजियस, कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, फैट नेक्रोसिस। शाबाश। सो बेटा जितने फिब्रिनॉइड, गैंग्रीनस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गैंग्रीनस अभी मैंने कराया नहीं है, मैं आपको
कल इंशाल्लाह ये टच करूंगी, ठीक है। सो अब याद करो कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो है इट अकर्स नंबर वन इन डेड टिश्यूज एंड डाइंग टिश्यूज। सो डेड टिश्यू में तो सारे नेक्रोटिक में आ गए, चाहे कोई आपको एमसीक्यू में टीबी की एग्जांपल दे, चाहे आपको ट्यूमर नेक्रोसिस की एग्जांपल दे, आंसर विल बी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे एजिंग टिश्यूज में, जैसे हार्ट वेल्व्स में या एबनॉर्मल टिश्यूज जहां पे होती है, कोई चेंज होती है, हार्ट वेल्व्स, एमसीक्यूज इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा आते हैं। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के लिए आपको एमसीक्यूज आएगा 4 चीजों के ऊपर, सो हम पहले वो याद करते हैं। नंबर 1, नेक्रोसिस ऑफ एनी सॉर्ट। ट्यूमर नेक्रोसिस की एग्जांपल है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। जो ट्यूमर नेक्रोसिस टीबी के अंदर आपको नजर आता है कैल्सिफिकेशन डिस्ट्रोफिक। नंबर 2, हार्ट में 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, हार्ट में आपने याद रखना है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में कैल्सिफिकेशन होती है और डीजेनरेटिंग हार्ट वेल्व्स में कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. और Yes, तीसरी जो ma'am. कैल्सिफिकेशन होती है दैट यू सी इन, दिस इज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ये देखो, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर नेक्रोसिस हुआ है, और नेक्रोसिस में क्यों होता है नेक्रोसिस? क्योंकि कैंसर बहुत रैपिडली प्रोलिफरेट करता है, इतना रैपिडली करता है कि इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द सेल्स बिगिन टू डाई, एंड दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। सो जो नेक्रोसिस, ट्यूमर नेक्रोसिस होता है, उसमें कैल्सिफिकेशन होती है। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन कैल्सिफिकेशन बेटा, ठीक है। और इस कैल्सिफिकेशन को खास तरह का नाम है, इसको कहते हैं सेमोमा बॉडीज, एंड दीज सेमोमा बॉडीज आर सीन इन अ मैलिग्नेंसी कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशंस में सिनेरियो 4 तरह के आपको देते हैं यूजुअली, और भी दे सकते हैं, लेकिन जो हम यूजुअली एनकाउंटर करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं इसको, सिनेरियोज। एक आपको देते हैं पेशेंट को टीबी थी, उसमें किस तरह की कैल्सिफिकेशन होगी। तो आप खुद ही समझ जाओ टीबी के अंदर पेशेंट को क्या है, कौन सा नेक्रोसिस है। Ma'am, dead bodies necrotic, tumor necrotic. हाँ जी, कौन सा Coagulative. नेक्रोसिस? नो 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 Coagulative. नो बेटा, केजियस। टीबी तो कभी सोते में भी ना भूलना, उसमें केजियस नेक्रोसिस है, चीज लाइक, ठीक है। सो उसके अंदर आपको कैल्सिफिकेशन डिस्ट्रोफिक मिलेगी। दूसरे नंबर पे एक पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें कैल्सिफिकेशन है, किस तरह की होगी? डिस्ट्रोफिक। डिस्ट्रोफिक। फिर एक और कैंसर है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, उसमें ये कैल्सिफिकेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दिस इज कॉल्ड सेमोमा बॉडी। ये जो सेल मर जाता है ना, वो कैल्सिफाई हो जाते हैं उसी शक्ल में। सो दिस इज कॉल्ड, and it becomes a nidus then, on which rest of the calcium salts deposit. So this is called papillary carcinoma का semoma body. समझ आ गई है बेटा? This is a semoma Yes, body. ma'am. In which cancer Yes. do you see semoma bodies? Papillary Papillary thyroid carcinoma. शाबाश, very good, very good. So अभी तक हमने किया है dystrophic calcification is that calcification which occurs in dead and dying tissues. फिर हमने इसकी examples की हैं। एक हमने इसकी एग्जाम्पल की है, 2 एग्जाम्पल्स हमने की है इसमें, हार्ट की, जिसमें हमने कहा है कि डैमेज्ड वाल्व्स में होती है एंड एथेरोस्क्लेरोसिस पे, ये सब एमसीक्यूज में आते हैं। केजियस नेक्रोसिस में इन टीबी, ब्रेस्ट कार्सिनोमास में, और पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमास में इन द फॉर्म ऑफ सेमोमा बॉडीज, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द सीरम कैल्शियम लेवल इन दीज पेशेंट्स? Decreases. it decreases. Decreases, Decreases. Increases. increases। Ma'am, increase हो डिपॉजिट होगा. देखो एक हिसाब से तो ये देखो कि अगर इंक्रीज होगा तो कैल्शियम डिपॉजिट होगी, लेकिन द पेशेंट बॉडी सीरम कैल्शियम लेवल रिमेन्स नॉर्मल। मैम लेकिन सीरम लेवल पे तो जा रही है, तो
नहीं बेटा नहीं, इसमें ये रीजन है, इसकी पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस ये है कि जो सीरम लेवल है ना वो पेशेंट का नॉर्मल है, लेकिन जो एरिया नेक्रोटिक है ना वहां पे जो डेड एंड डाइंग सेल्स हैं वो अपना कैल्शियम बाहर बाहर जो है ना वो उनका निकल जाता है सेल से. सो इट इज हाई इन द सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू ओनली. सो जो रीजनल कैल्शियम लेवल ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द डाइंग टिश्यूज, डाइंग सेल्स, लेकिन बॉडी का सीरम लेवल ठीक होता है, तभी तो वो सिर्फ इन एरिया ऑफ नेक्रोसिस में आपको मिलता है. समझ आ गई है बेटा? Yes, ma'am. Yes. Very Yes, important MCQ that the body serum level remains normal. सिर्फ ये होता है जहां नेक्रोसिस होता है या डैमेज होता है वहां पे सेल्स के डैमेज की वजह से सेल के अंदर से कैल्शियम निकलने लग जाता है, और जब वो कैल्शियम निकलता है तो सिर्फ उस नेक्रोटिक एरिया में कैल्शियम ज्यादा होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो एक नाइडस बन जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स दे डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ इट. बेटा समझ आ गई इस चीज की? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो तीसरा MCQ ये है, द सीरम कैल्शियम लेवल रिमेन्स नॉर्मल. Normal. You have a relatively raised serum calcium level in the affected zone only. Get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So this was about dystrophic calcification. So what about metastatic calcification? There is another type of calcification which is called metastatic calcification. Metastatic calcification से क्या समझ आती है आपको? What do you mean by metastatic? Moving. जो change कर ले अपनी जगह. Metastatic beta is a term which is usually used for malignancies. जब ट्यूमर एक Yes. जगह से दूसरी जगह पे फैल जाता है ना तो हम कहते हैं वो मेटास्टेसाइज करके. ठीक है? So metastatic calcification is the type of calcification. M stands for metastatic, M stands for metabolic disorders. So metastatic calcification occurs in those metabolic disorders that directly or indirectly are related to raised serum calcium levels. ठीक है? So metastatic calcification, number one, it occurs in metabolic disorders. Number two, it is not limited to one area. It can affect different parts of the bodies simultaneously. ठीक है? और इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मॉनिटर करती है? Parathyroid. So if you have hyperparathyroidism, primary or secondary, you'll have metastatic calcification. If you'll have vitamin D intoxication, which again is responsible with calcium metabolism, you'll again have metastatic calcification. ठीक है? इसी तरह ये सब areas वो हैं which are responsible for metastatic calcification. So number one, parathyroid glands. Number two, kidneys in the form of secondary involvement. Number three, increased absorption of calcium from the GIT. And number four, bone. कुछ malignancies हैं बेटा जिनका नाम है multiple myeloma. Multiple myeloma is a malignancy which affects the bones and other organs as well. So जब ये जाती है ना, it is associated with increased calcium level. So चार चीजें याद रखो. In hyperparathyroidism, you can have this sort of calcification, metastatic. Number two, you can have this calcification in vitamin D intoxication. Number three, you can have this type of calcification in a few disorders, in malignancies like multiple myeloma. M stands for metastatic calcification, M stands for multiple myeloma. ठीक है? So ये आपके बुक में causes काफी दी हुई हैं, आप उनमें से 4-5 causes याद कर लो, that is enough. सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका MCQ आप solve कर सको. So then there is a condition which is called milk alkali syndrome. These are the different sides. किसी भी जगह पे हो सकती है. मैं इनकी details में नहीं जा रही. So you have hypercalcemia mainly in malignancies like multiple myeloma, in hyperparathyroidism, in the use of a few diuretics. इसमें मैं इतनी detail में नहीं जा रही. Then we have milk alkali syndrome.
What is milk alkali syndrome? In milk alkali syndrome, आप अगर antacids लेते हो with milk, पानी की बजाय लेने से आप milk से लेते हो, so medium of the stomach becomes more alkaline as compared to acidic. Normal medium of the stomach is acidic, isn't it? But in Yes, milk ma'am. alkali syndrome, आप अगर उसको कैल्शियम से लेते हो दूध के साथ, so थोड़ा सा alkaline medium हो जाता है, which favors absorption of calcium from the GIT. और कभी कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो it will lead to metastatic calcification, milk alkali syndrome, deposition of calcium in the alkaline urine. ये सिर्फ आपका एक MCQ है. Please, this is a very important SCQ and MCQ. The difference between dystrophic and metastatic calcification. Let's revise. Dystrophic calcification occurs in Dead and Dead. dying tissues. in dead and dying tissues. Metastatic calcification occurs in living tissues. Normal tissues. In Normal normal tissue. living tissues. Okay? Number 2, the cause of dystrophic calcification is a relative increase in the area where there is calcification. And what happens to the serum calcium level? MCQ. Remains normal. Normal. Serum calcium level is normal in dystrophic calcification. And what will happen to serum calcium level in metastatic? Increase. Decrease. Quite increased, बहुत ज्यादा. ठीक है. Number 3, one area where there is necrosis will be involved in dystrophic calcification, but metastatic calcification can occur at different sites. ठीक है. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. Obviously, dystrophic Yes, उधर ही होगी जहां पे dead and dying tissue है. Metastatic जो है वो metastasis की तरह different body areas में होगा. So calcium metabolism is normal in dystrophic and it is deranged in metastatic calcification. और आखिर में आपने examples देनी. Time तो नहीं हो गया हमारा. मैम मिल्क अलाइ सिंड्रोम था एक दफा फिर बता रहे हैं. मैं वो बताती हूँ लेकिन बताओ टाइम तो नहीं हो गया. मम्मी 10 मिनट है अभी. अच्छा ओके. सो ये वाली Ma'am, आपको समझ आ गई है. इसमें आपने साथ में एग्जांपल्स देनी है. नाउ कमिंग टू मिल्क एल्कली सिंड्रोम. मिल्क एल्कली सिंड्रोम बेटा यूजुअली ना हमारी इधर गुर्बत बहुत है. So, जब भी हमने किसी मरीज को कहना होता है ना दवाइयां खाएं तो वो ना बड़े ज्यादा होते हैं. बाजी रोटी तो पहला ला के रोटी दे बाद, पानी ना लवा के दूध ना लवा, दही खानी है लस्सी पीनी है, ये चीजें जरूर कहते हैं. सो यूजुअली हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप दूध के साथ दवाई लो टू इंश्योर कि उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाए. ठीक है. फॉर नॉर्मली फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन हम कहते हैं दूध के साथ. लेकिन जो एंटासिड्स होते हैं जिन पेशेंट्स को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, वो पेशेंट्स एंटासिड्स लेते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए उस एसिडिटी को. As a result of which they usually take it with water half an hour before meals. लेकिन कभी कभार पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि वो दूध के साथ लेने लग जाते हैं. The more acidity they have वो साथ में दूध के लेते हैं. So medium alkaline होता है मिल्क का. And you know कि मिल्क थोड़ा सा मीडियम एल्कलाइन करता है, एंटासिड एल्कलाइन करता है, और दूसरा मिल्क के अपने अंदर बहुत कैल्शियम होता है. सो वो कैल्शियम जो है ना और जो एंटासिड है उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट है. सो ये दोनों चीजें मिलके एल्कलाइन मीडियम में बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाती है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है. समझ आइए बेटा. सो बॉडी में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है अगर पेशेंट ये एक्टिविटी अपनी जारी रखे काफी अरसे तक. समझ आइए. मिल्क में भी एंटासिड है, मिल्क हैज कैल्शियम. यस मैम. और जो एंटासिड लेते हैं वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है जैसे. सो मिल्क और ये एंटासिड्स दोनों एल्कलाइन मीडियम कर देते हैं. उस एल्कलाइन मीडियम में कैल्शियम कैन इजीली बी एब्जॉर्ब्ड. लेकिन अगर आप दूध भी ले रहे हैं, एंटासिड भी ले रहे हैं, मीडियम भी फेवरेबल है, और ये एक्टिविटियां बहुत देर, जरूरी नहीं है हर एक को हो, लेकिन हो सकता है अगर ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो या आप ज्यादा ले रहे हैं. ठीक है. दिस इज मिल्क एल्कली सिंड्रोम. और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट भी होना है. तो जब यूरिन एल्कलाइन हो जाती है तो उसमें सेटल हो जाता है और उसमें रीनल फंक्शन इंपेयरमेंट हो सकता है.
ठीक है, ये मैंने डिटेल आपको बताई है, अदरवाइज आपको जब कोई आएगा मिल्क एल्कली सिंड्रोम का, जस्ट रिमेंबर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटास्टैटिक अल्सर। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। सिर्फ आखिरी चीज मैं आज आपको करा दूं ताकि कल ना हमें करनी पड़े, दैट इज क्या हमने किया था बेटा, जैन आपने क्या बोला था? गैंग्रीन। गैंग्रीन, व्हाट इज गैंग्रीन? necrosis, type of necrosis. It's a type of necrosis. Very good. It's a type of necrosis which is of two types, dry and wet. ठीक है? Okay. मैं आपको उसमें, it is of two types, dry and wet. How does it differ from necrosis? दूसरा lecture. How does it different from necrosis? It's a type of necrosis, but differ कैसे करते हैं? Any idea? मैम इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी ना उसमें? तो वो तो उसमें नेक्रोसिस में भी होती है, नेक्रोसिस में भी तो ब्लड सप्लाई नहीं होती ना बेटा। मैम रीगेन हो सकता है वापस? रीगेन, नेक्रोसिस इज नेक्रोसिस, मर गया तो मर गया। दोबारा तो नहीं जिंदा हुआ। ये अफेक्ट करता रहेगा उसको कंटिन्यू? मैं आपको बताती हूँ, नहीं नेक्रोसिस का, सॉरी नेक्रोसिस का मैं बताती हूँ बेटा। नेक्रोसिस है ना, याद रखो, इट इज द सेम एज, नहीं नेक्रोसिस, ठीक है, आपने याद रखना है कि जो डिफरेंस है ना, दैट इज बिटवीन एक मरा हुआ बंदा और एक ऐसा बंदा जिसकी बॉडी गल सड़ गई है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तो जो मरा हुआ बंदा है ना, दैट इज नेक्रोसिस, लेकिन with super added bacterial infection, with super added putrefaction, we call it gangrene. ठीक है, सो यही फर्क है। एक बॉडी डेड बॉडी है, वो नेक्रोसिस है, लेकिन अगर उसमें ताफून फैल के वो प्यूट्रीफाई हो गई है तो उसमें से स्मेल आने लगती है, वो एक, that is called gangrene. So gangrene is a special type. Book में नहीं लिखा हुआ, please write it down. This is one of my favorite Viva question. मैं बच्चों से जरूर पूछती हूँ, what is the difference between necrosis and gangrene? So necrosis is a type of cell death. It's a cell death, whereas gangrene is a type of cell death which is associated with superadded putrefaction. ठीक है, वही सारी चीजें उसमें चलती हैं। जो coagulative necrosis है वो आपका ड्राई गैंग्रीन करते हैं और वेट नेक्रोसिस आपका लिक्विफैक्टिव करते हैं। ये देखो, दिस इज ड्राई गैंग्रीन। इन विच कंडीशन यू सी ड्राई गैंग्रीन? किसमें होती है? मैम डायबिटीज। शाबाश, डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट का मेन कॉज क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। हमने ये कहा है कि जब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, वी हैव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सो ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो है, but what is the difference between coagulative necrosis और इस necrosis? मैम super added putrefaction. Super added putrefaction हो गई है, गंदा हो गया है, ये वन स्टेप अप चला गया है और ये ब्लैक हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये सिर्फ डेड नहीं है, अब इसमें putrefaction स्टार्ट हो गई है, गल सड़ आ गया। ठीक है, so it is a special type of necrosis which is associated with putrefaction. This is the dry. Example of dry gangrene, foot in diabetics. ये देख, dry gangrene. Dry gangrene. This is wet gangrene. Diabetic foot में वो तो एक एक्सट्रीम है ना, शुरू में जब उसका एक छाला या जख्म बनता है ना, that is, या बेड सोर्स जो होते हैं, उसके अंदर गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है, that is wet gangrene. Because of high sugar content, the wound doesn't heal, खराब ही होता जाता है, and that actually serves as a very fertile soil for the bacteria to grow. लेकिन इसकी common example है जो wet gangrene की, that is intestine. MCQ. एक दफा एक वाइवा क्वेश्चन पूछा था बेटा एक बच्चे से एक्सटर्नल ने कि आपकी वेट गैंग्रीन की साइट बताओ, उसने कहा जी इंटेस्टाइन। उन्होंने कहा इंटेस्टाइन में वेट क्यों होती?
So the answer was wet इस वजह से होती है क्योंकि intestine में normally we have bacterial flora. Normally होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. और जिस वक्त उसकी blood supply occlude होती है दोनों side से, so you are the patient is deprived, the intestine is deprived of its blood supply, which provides a very fertile soil for the bacteria to grow. पहले से ही है बैक्टीरिया, लेकिन अब वो ग्रो कर जाएगा. और हमने अपना पढ़ा था लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इज दैट टाइप ऑफ नेक्रोसिस व्हिच इज किसके साथ होती है, व्हिच इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. यही कहा था ना हमने. सो समझो दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रिफैक्शन. एंड गैंग्रीन ऑलवेज अपीयर एज ब्लैक. ठीक है. मैम तो जिस तरह लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में होती थी तो वेट गैंग्रीन भी ब्रेन में होगी. बेटा इतनी नौबत नहीं आएगी कि वेट गैंग्रीन. ब्रेन इज वेरी रिचली सप्लाइड. सो वेट गैंग्रीन ब्रेन में नहीं नजर आती, उससे पहले ही बंदा उड़ चुका होता है. पहले बॉडी का सिस्टम जो सबसे ज्यादा प्रिवेंट किया जाता है ना कुदरत की तरफ से, वो 2-3 सिस्टम्स प्रिवेंट किए जाते हैं. ब्रेन, हार्ट, लिवर एंड किडनी, लंग्स. ये 4-5 सिस्टम्स हैं जिनको सबसे ज्यादा कोशिश होती है, इसीलिए इनको डबल ब्लड सप्लाई है. लंग्स को डबल ब्लड सप्लाई है. ठीक है, इसी वजह से ताकि वो ना हो सके. इट इज नॉट कॉमन इन ब्रेन. नॉट द मोस्ट कॉमन साइट इज ऑफ अ वेट गैंग्रीन इंटेस्टाइन. और वो भी वॉल्वुलस में. वॉल्वुलस पता है ना क्या होता है, इंटेस्टाइन अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाती है. सो जब रोटेट करती है तो ये देखो इस तरह करके उसमें ना वो एक आ जाता है, इधर से ब्लॉकेड आ जाती है. तो जिधर से ब्लॉकेड आती है उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है. सो रुकी इधर भी ब्लड सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं इन द इंटेस्टाइन कि वो वेट गैंग्रीन होती है. इसी तरह जो बेड सोर होता है डायबिटिक पेशेंट का, वो होता तो ओपन है, लेकिन उसके अंदर इतनी शुगर होती है कि बैक्टीरिया जो आम एनवायरनमेंट के वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है. So this is gangrene. So I expect you all to know what is the difference between necrosis and gangrene. ठीक है, आपको आता है. Gangrene is a special type of necrosis yet, but कैसे? Because it is associated with superadded putrefaction. Plus necrosis एक सेल का भी हो सकता है, 6 सेल्स का भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, लेकिन gangrene is always macroscopic. आपको नजर आ जाता है. ठीक है. So with this we come to the end of our lecture. कल probably we'll be having our last lecture. ठीक है. मैम आपने पहले कहा था ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, अब आप कह रही हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है. सॉरी, किसमें कह रही हूँ बेटा? आपने वो गैंग्रीन की डेफिनेशन के अंदर ये लिखा हुआ था ना कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस. हाँ बेटा देखो ये वाला, देखो मैं आपको बताऊं, ये मैं जितनी चीजें आपको बताती हूँ ना, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. बॉडी में ये ऐसे नहीं होता. अब जैसे ये देखो, दिस इज ड्राई गैंग्रीन, लेकिन इसमें ये जो आपको थोड़ा थोड़ा गीला गीला नजर आ रहा है ना, ये इस ड्राई के ऊपर फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई जैसे रूटीन बॉडी में हो जाती है. ठीक है. सो ये दोनों गो साइड बाय साइड. लेकिन जैसे ये है, दिस इज ड्राई गैंग्रीन, लेकिन जो बेड सोर बनता है वो इनिशियली जब बनता है वो वेट गैंग्रीन होती है. अगर वो होगा बिकॉज ऑफ इंजरी जिसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ गई है, अगर वो बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई होगा कॉज डिपेंडेंट, तो वो होगा ड्राई. आप ऐसे समझो जैसे नेक्रोसिस की 2 टाइप्स है ना, कोएगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव. नेक्रोसिस दोनों में हो रहा है. एक के अंदर नेक्रोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. ठीक है. वो अगर गैंग्रीन में होगा तो वो ये होगा ड्राई गैंग्रीन. लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से जो गैंग्रीन होगी दैट इज ड्राई गैंग्रीन. और अगर इन्फेक्शन की वजह से जो गैंग्रीन होगी दैट विल बी वेट गैंग्रीन. समझ आई बेटा? डायबिटिक्स में ये दोनों होती है बेटा. यस मैम. ठीक है. अब कल आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी बेटा. कम प्रिपेयर्ड विद असाइनमेंट्स. हम वो डिस्कस करेंगे और टाइम हुआ तो हम अपने SCQs करेंगे और साथ साथ जो सिनेरियोज हमें बनते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँ. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों की इसकी असेसमेंट होगी बेटा, वो असेसमेंट आपकी इंटरनल असेसमेंट में काउंट होगी, क्योंकि अब ऑनलाइन ही हम चल रहे हैं फिलहाल. कब तक चलते हैं हमें नहीं पता.
till further orders. तो ये आपकी काउंट होगी, टेक इट वेरी वेरी सीरियस। दूसरा आप लोगों की अटेंडेंस से रिलेटेड बताना था। मैंने रिक्वेस्ट की IT डिपार्टमेंट से कि आप लोगों को 2 वीकली आपकी अटेंडेंस पोस्ट कर दी जाए, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों की क्या अटेंडेंस जा रही है, और जिस डे पे आप लोगों की प्रॉब्लम आई है, जैसे 24 की आई है, वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू मैम। और कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। Allah. अल्लाह हाफिज।